Hello everyone. Hello everyone. I hope all you are doing well. After a wonderful speech by Arjun, I think you would be really motivated. And it is a very hard to carry on because I think most of the things Arjun has covered already, how a startup journey is and how things are. But one thing is startup को बनाने के लिए भी आपको एक product चाहिए, एक innovation चाहिए. So with my takeover here, I'll cover लाइक स्टार्टअप के लिए एज आई सेड आपको एक कोई प्रोडक्ट चाहिए ना, तो उस प्रोडक्ट पे काम कैसे करते हैं, व्हाट इज द जर्नी बिहाइंड इट एंड हाउ यू फाइनलाइज अ प्रोडक्ट विद इट एंड हाउ देन यू टेक इट टू द मार्केट. आई विल बी कवरिंग दैट पार्ट टुडे. सो टॉकिंग अबाउट इनोवेशन, थोड़ा सा बोरिंग है आई नो, बट या एक बार क्योंकि इनोवेशन का सेशन है, सो जस्ट आई विल टॉक अबाउट व्हाट एक्चुअली इनोवेशन इज इन business terms in startup world. So innovation is a part of entrepreneurship. So like if you have a product, if you have something that is obviously very unique, that is not there in the market, it has a very best chance that it would be accepted by the market. So innovation plays a key role, and it's like talking about its importance, innovation grows your business. So if as I said, your product is innovated, if your product is very much new, that is not there in the market, obviously your business would grow. Innovation helps to stay ahead of the competition. So you have to constantly evolve yourself, you have to constantly work on your product, and if you are constantly working on it, surely the day would come when you will succeed. Innovation helps to take the advantage of new technologies. So you have to bring in new technologies, you have to constantly work on them and how you can improve on it further. So talking about the product that we made, Smart Solar Hub. So this is our product, and now I'll cover the journey behind it and how did we made this whole product. So as Arjun said that while we were on a Manali trip, we discovered that we both want to work on the startup and bring this product to life. So right after that we start working on that product, but just after it the COVID second wave hit, and like we were back to our homes, and we were very much feeling आई कि मतलब जस्ट हमने अभी सोचा कि हमें एक प्रोडक्ट लेके आना है, वी वर्कड ऑन इट. मैंने भी जस्ट स्टार्टअप ज्वाइन करा, एक हाईली मोटिवेटेड के साथ हमने स्टार्ट करा, बट एकदम से फिर कोविड आया, एंड नाउ अब क्या करें, मतलब अब हम घर पे चले गए हैं, एंड दिस इज दैट प्रोडक्ट वेयर यू हैव टू गो टू द कॉलेज, वेयर यू हैव टू वर्क इन द बिल्डिंग शॉप, तभी ये प्रोडक्ट बनेगा. बट स्टिल as Arjun also mentioned that startup में आपको कभी भी रुकना नहीं होता है. If any problem is there, I think आपको उस प्रॉब्लम को पार करके कैसे आगे बढ़ना है, दैट इज व्हाट अ स्टार्टअप इज. तो हम ये सोचते थे हम घर पे काम करना शुरू कर देंगे, कुछ कर देंगे, बट ऑब्वियसली चीज़ें वैसी नहीं गई. बट जैसे ही लॉकडाउन खुला, अब हमने उतने टाइम में क्या करा, वी प्रिपेयर्ड आवरसेल्व्स कि जैसे ही आपका कोविड खत्म होएगा, वी वुड बी बैक इन देयर कॉलेज, एंड वी वर वेरी मच बेटर प्रिपेयर्ड. So then we started with this product in October 2021, and then like इसकी अब मैं थोड़ी जर्नी बताऊँ तो while building this whole product is built by Arjun and me. So like we have spent rigorous days and nights in our college workshop, right from welding to all the machining part to cutting part, each and everything has been made by both of us. And मतलब अब obviously it's a proud moment कि we have built this, but during that journey you don't know कि वो कैसे succeed होएगा, that project how would it turn out. बाद में हमें बहुत अच्छा दिखता है कि हाँ ये प्रोजेक्ट बन के आ गया है, ये बन गया है, बट while you are in the journey वो go through करना बहुत टफ होता है. अब when we are building this product कितनी देर परेशानी आती है, दिक्कत में, मतलब बार बार आपको हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं, बट वही स्टार्टअप का फन है कि दैट व्हाइल यू आर इन द जर्नी you constantly work on it and try to improve and move further. So this was about this product. Now talking about my another product, the filament extruder machine, which secured a funding of 5.5 lakhs from Ministry of Education. Talking about this product was built in right when the COVID hit in March 2020. We got this idea that we would build this product. We just started with it, and then again फिर से COVID आ गया. That was the major time जब COVID आया. तो but वही है कि we had this innovation, we wanted to bring it forward. We started working with it. अब जब like what I want to convey is
while I was working on it, I didn't knew that ये इतना बड़ा टर्नअप हो जाएगा, that MHRD would accept it and इसको 5.5 लाख की फंडिंग मिलेगी, and I'll share the rest of achievements as well. So when you are in the journey, you don't know how a project would succeed, how it would grow. So वो जो journey का time होता है, I think that's the most beautiful part of a startup, of a innovation when you are working on it. Yeah. ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਦੇ ਲੋਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੈ? Sorry. ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ करता है तो मैनेज कितना करते हैं? मैनेज यू हैव टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। अब बात ये कि आप एक बिगर गोल के लिए चल रहे हो, दिक्कतें आएंगी, आज भी बहुत दिक्कत है। इनफैक्ट आई शेयर जस्ट फॉर दिस सेशन एज वेल, मेरे को रात फीवर था, बट भैया अब ये सेशन लगाना था, कुछ करना था, मेरी अभी पीपीटी प्रिपेयर नहीं थी, तो वाइल सिटिंग हियर आई जस्ट प्रिपेयर्ड माय पीपीटी। तो यू हैव टू, मतलब अगर आप उस जर्नी में होते हैं, आपको उसको फुलफिल करना है, तो यू हैव टू स्टिक विद इट। एंड प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स विल डेफिनेटली कम, बट इफ यू आर विद द राइट अप्रोच, इफ यू आर वर्किंग विद द राइट अप्रोच, वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके सॉल्व होती जाएंगी। ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि जो वे से आप अप्लाई कर रहे हो उसी वे से सॉल्व हो, बट यू ऑब्वियसली हैव टू कीप ट्राइंग। मे बी इस वे से नहीं होगा, कोई सेकंड वे से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सो दैट इज अबाउट इट, ठीक है। एंड लाइक अबाउट दिस फिलामेंट एक्सट्रूडर मशीन मैं थोड़ा बता भी देता हूँ ये है क्या बेसिकली। सो आई थिंक यू मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ व्हाट अ 3D प्रिंटर इज। ये आइडिया है किसी को 3D प्रिंटर क्या होता है? सुना है किसी ने? हाँ, सो 3D प्रिंटर में ना एक फिलामेंट वायर जाती है, फिलामेंट वायर जो कि अब तक ऐसा था कि वो सिर्फ लार्ज स्केल पे बनती थी, बिग बिग इंडस्ट्रीज बनाती थी। देयर वाज नो वन हु वाज मैन्युफैक्चरिंग दोज वायर्स एट अ स्मॉल स्केल लेवल। सो व्हाट वी थॉट ऑफ कि चलो अब हम लैब में काम कर रहे हैं, तो एक लैब में ऐसा स्मॉल स्केल यूनिट तैयार करते हैं। सो वी केम अप विद दिस आइडिया। अब ये मशीन करती क्या है? सो ऑन वन एंड यू कैन सी there is a whole setup there. So we pour plastic pellets over there, and on the another end we receive all the filament wires. अब maybe देखने में वो लगे, but to build this whole system, to design this whole system, there is a lot of planning that is involved, lot of execution that is involved, and I won't say that ये किसी ने पहले नहीं बनाया होगा. Maybe people would have made it, but obviously here comes the execution play, that how you are executing that, how you are taking forward that. So that what matters the most. Now I have covered these two parts. अब जैसे इन्होंने बोला कि प्रॉब्लम्स आती हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे होंगे जो अपना बिजनेस आगे लेके जाना चाहते हैं, दे वांट टू टेक देयर बिजनेस फॉरवर्ड। तो कल को यू विल बी पिचिंग टू इन्वेस्टर्स या कुछ ऐसे आप पिच करते हो, तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज मैं थोड़ा बहुत जिस्ट भी दूंगा कि इन योर पिच डेक व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड इंक्लूड एंड कैसे प्रॉपर पिच डेक बनती है, सो दैट व्हाइल व्हेन यू हैव योर आइडिया इन माइंड and you want to present to someone, this is the format how you should do it. So I'll be sharing that, and this format obviously क्यों ये अच्छा है, because this format was accepted by MHRD and 5.5 lakh की funding मेरे को इसी format से मिली. So obviously like while you are applying for some funds or for some grants, you can use this format, and इसी way में you could present your idea. So you should include a deal, basically what you are giving to the clients. Now here, as I mentioned, there are 2 to 3 business categories: B2B, B2C, B2G. Shark Tank सबने देखा है तो पता होगा सबको B2B ये सब क्या होता है. So you should include in your presentation कि किस segment में आप work कर रहे हो. तो talking about my product, we were working in the 2 segments, B2B and B2C. This is you should explain in which sector you are working, and you should tell about, like as I just said, we are working in the 3D printing sector. So while you are presenting your idea, you should inform your audiences about the sector in which you are working, and you are presenting your innovation. This is a customer discovery. So ये मेरा हमेशा का कहना है, इनोवेशन ठीक है, आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, you have built a great product that is not there in the market, maybe it's a very unique product and उसको पेटेंट भी ग्रांट हो गया, सब कुछ ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा बिजनेस होएगा. इनोवेशन तक ठीक है, आइडिया तक ठीक है कि वो बहुत अच्छा था, कोई भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए इट हैज़ टू बी इम्पॉर्टेंट दैट इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द मार्केट, इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द पीपल. अगर कोई एक प्रोडक्ट है वो आप लोगों को ही एक्सेप्टेड नहीं है तो वो प्रोडक्ट नहीं चलने वाला. तो व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर एक आइडिया आया है माइंड में, यू हैव टू डू अ कस्टमर डिस्कवरी, यू हैव टू रीच आउट टू द पीपल, यू हैव टू आस्क देम कि जो हम ये सोच रहे हैं क्या इस पे आगे वर्क करना सही भी है या नहीं.
इफ पीपल आर विलिंग, ऑब्वियसली किसी भी बिजनेस को चलने के लिए आपको कस्टमर्स चाहिए होंगे, अगर उस प्रोडक्ट को कस्टमर्स ही उसमें इंटरेस्टेड नहीं, इफ पीपल आर नॉट विलिंग टू बाइंग इट, तो वो प्रोडक्ट पे, वो इनोवेशन पे काम करके भी कोई फायदा नहीं है। मतलब इफ यू वांट टू टेक इट टू द स्टार्टअप लेवल, तो स्टार्टअप में इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट और मोस्ट यूनिक प्रोडक्ट दैट हैव द बेस्ट यूएसपी एंड बेस्ट फीचर्स विद इट वो चलेगा। अ सिंपल प्रोडक्ट but that solves the problem that at core it's a problem for many people that can be definitely a big hit. So you have to identify the problem ki people ki core problem kya hai, core need kya hai, you have to work on that and then you have to work on that idea. So then you take into picture the key learnings that you have from the survey that you conducted. I'll share also share that while not this particular filament extruder machine, while we were planning to incorporate our e-commerce platform, ऐसा नहीं है कि हमने सोचा and just directly we take the idea and हमने e-commerce platform बना दिया. We did a customer survey, we made a Google form, we shared it all across, people filled it, then we got a data from it that हाँ people को actually interest है eco-friendly products में. जो आजकल की यूथ है, they want products that are more sustainable, that are at core eco-friendly products. From that learnings, we then made a whole website. So customer survey, knowing your customer is a very primary part and it's a very important part for a startup, for any business. So that plays a very key role. तो कोई भी किसी के माइंड में कोई आइडिया है, कुछ है, ठीक है, बट एक बार उस आइडिया के सेगमेंट के लिए, सपोज आपका कोई बिजनेस का आइडिया है, रीच आउट टू ऑल द बिजनेसेस आउट देयर, कोई भी आपके नोन में हो, कोई आपके नॉर्मल फ्रेंड्स फैमिली हो, उनको रीच आउट करो, उनसे बात करो कि क्या मैं इस आइडिया पे काम करता हूँ, मैं लेके आता हूँ, ये आप लोगों के लिए काम करेगा, एंड उनसे थर्ड वे में अप्रोच में पूछो, मतलब नॉट जस्ट कि ऑब्वियसली वो तुम्हारे फ्रेंड्स एंड फैमिली है तो वो तुम्हें हाँ हो सकता है उस टाइम अच्छा बोले, सो रीच आउट टू थर्ड पार्टी कस्टमर, मतलब उनसे बात करो, क्योंकि ऑब्वियसली वो एंड में कोई भी स्टार्टअप चलने वाला है कस्टमर से, तो अगर कस्टमर उसमें विलिंग होंगे, कस्टमर उसको रेडी होंगे बाय करने के लिए, देन योर आइडिया इज अ सक्सेस. Novelty, you have to find how much novelty is there in your product, कितना मतलब उसका वैल्यू प्रोपोजिशन है प्रोडक्ट. अब वही है, प्रोडक्ट तो आपने बना लिया, लेकिन मार्केट में देयर आर 10 to 15 प्रोडक्ट्स. अब आपको ये भी फाइंड करना है कि बट प्रॉब्लम तो आप सॉल्व कर रहे हो, बट उस प्रोडक्ट का वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, वो प्रोडक्ट और उससे डिफरेंट कैसे है, क्या यूनिक आप सॉल्व कर रहे हो. सो दैट यू हैव टू फाइंड एंड हाउ डिफरेंट यू आर फ्रॉम द वंस दैट आर देयर इन द मार्केट. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट एंड यू हैव टू देन वर्क ऑन इट. तभी आगे इन्वेस्टर्स और सारे उसको एक्सेप्ट करते हैं, एंड दैट्स हाउ यू मूव फॉरवर्ड विद योर बिजनेस. You have to identify your competitors. अब as I said, कोई ऐसा identify your potential competitors और उनको लिस्ट डाउन करना पड़ता है, तभी आप उस पर काम कर पाओगे कि जो आप काम कर रहे हो ऑब्वियसली वो बंदा भी वही कर रहा होगा, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जो आप आइडिया पे काम कर रहे हो वो और कोई नहीं लेके आया होगा. अभी while we are sitting across, एक ही आइडिया कितने लोगों को सेम चीज़ ट्राई कर सकती है, एंड ऑब्वियसली दे वुड बी वर्किंग विद इट. तो ऐसे ही हर प्रोडक्ट का देयर इज अ कंपटीशन. हमने जो सोलर हब बनाया है ऐसा नहीं है कि उसका कोई कंपटीशन नहीं होगा, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि हाउ कुड यू बी डिफरेंट एंड हाउ योर एग्जीक्यूशन एंड हाउ योर अप्रोच कुड बी. तो यू हैव टू बी डिफरेंट इन दैट. तो वही है, व्हाइल यू आइडेंटिफाई योर competitors that are out there, then you have to study them thoroughly and then move forward with your business. Now talking about some dark side. While in our college, in our last semester, हर एक का ड्रीम रहता है, probably सबका भी ड्रीम होगा कि हमें जब हम कॉलेज कर लेंगे हमें उसके बाद किसी अच्छी एमएनसी में जॉब करनी है, कहीं जॉब करनी है. ऐसे ही मेरा भी था कि while my college is completed उसके बाद I'll take a job and then I'll work forward. But obviously mindset स्टार्टअप की तरफ था कि स्टार्टअप में आगे मूव ऑन होना है, बट एक वो अंदर से फिर भी रहता है कि ऑब्वियसली मतलब फ्रॉम द फैमिली वी कम इन,
हर एक को रहता है जॉब इज़ अ वेरी सिक्योर्ड ऑप्शन। तो ठीक है, हमारी फिर KPMG में प्लेसमेंट हुई एंड हमने कहा कि हम स्टार्टअप पे भी साथ साथ काम करेंगे एंड अपनी जॉब को भी साथ साथ मैनेज करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली स्टार्टअप इज एवरीथिंग वी हैव वर्क फॉर एंड इसी के लिए वी आर देयर टू वी वर्क विद इट। और ऑब्वियसली KPMG में जॉब लगना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, तो हमें ये था कि विल टेक द एक्सपीरियंस फ्रॉम KPMG एंड जितना वी कुड मैनेज विल वर्क इन द KPMG एज वेल। मी एंड अर्जुन वर बोथ प्लेस्ड इन द सेम टीम लकीली एंड दोनों का ही हमारा सेम स्टार्टअप था, सेम टीम थी, सो वी वर वर्किंग इन KPMG. Arjun left it in the month of February, but I decided that I will continue for 6 more months, and while my then internship is done, I'll then move forward to my startup. But अब वो जो 6 months हैं, that I'll say was the most grueling part of my life, because from Monday to Friday I was working with KPMG. Then बीच में I have to work for my startup part as well. From Saturday to Sunday we were building this smart solar hub. So constantly we were working and then फिर ऐसा days आते हैं you feel like कि आपका सब कुछ छोड़ने का मन कर रहा है, but that's obviously the motivation that startup brings in, the small achievements that you get within, जैसे 75 years पे सिलेक्शन होना या ऑस्ट्रिया जाना, these are the small perks that you get that keeps you motivated कि नहीं कोई बात नहीं, हमें Monday to Friday काम करना पड़ रहा है, रात को काम करना है, we'll do it, we'll अगर वो एक अच्छा दिन आना है उसके लिए विल पुट इन 29 days ऑफ हार्ड वर्क, विल पुट इन फॉर दैट। तो वो एक माइंड से मोटिवेशन चाहिए होती है। अब डार्क साइड क्या था उसका, फॉर माई स्टार्टअप आई हैड टू लीव माई MBA टीम। वाइल आई विश टू अर्जुन कि मेरे को स्टार्टअप में काम करना है, आई हैड प्लान्स कि मेरे को MBA का भी कंटिन्यू करना है, बट ऑब्वियसली यू कांट do 10 things while working on a startup, so you have to segregate those things. I left my MBA dream, I left a job at KPMG that I got from college placement, and not just this, I was also managing another startup as well that I told about, the filament extruder machine. So these were some of the tough challenges that you face while working on a startup, because see we are at an age जहाँ पे हमें कमाना भी है। इट कांट बी लाइक कि हम एक स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं और ऑब्वियसली घर वालों का फिर प्रेशर भी आना शुरू होएगा कि यू हैव टू स्टार्ट अर्निंग, बिकॉज सी आई एम द एल्डर वन ऑफ माई फैमिली। तो एक वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट यू हैव टू स्टार्ट अर्निंग, वो एक कॉन्स्टेंट प्रेशर होता है। सो वो प्रेशर आपको अंदर से भी तोड़ता है, बट आई थिंक दैट कीप्स यू मोटिवेटेड एज वेल टू गो टू वर्क आउट देयर एंड काम करना है। एक ऐसी स्टेज लाएंगे हम खुद, लाएंगे चेंज लाएंगे दैट we can be that soul earner, ठीक है। एंड स्टार्टअप वर्ल्ड इज नॉट अ लाला लैंड, मतलब शार्क टैंक सबने देखा है, सबको अब लगता है कि इट्स वेरी इजी, यू हैव एन आइडिया, आप उसको आगे ऐसे ले जाओ। इट्स नॉट अ लाला लैंड, इट्स अ ऑब्वियसली अ वेरी डिफिकल्ट स्पेस, बट वही है वो, इफ यू हैव दैट मोटिवेशन फ्रॉम विद इन कि मेरे को वहाँ कुछ करना है, मेरे को एक चेंज लेके आना है, यू कैन गो विद इट, बट इट्स डेफिनेटली नॉट अ लाला लैंड। These are the achievements. So जैसे मैंने बताया during the COVID time मैं कॉलेज जाता था, UIT पंजाब यूनिवर्सिटी, there was no one at the college, मैं इकलौता बच्चा होता था जो I used to be there in college, I used to work on this machine. उस टाइम I didn't realize कि ये प्रोजेक्ट ऐसा कुछ बड़ा आगे जाके करेगा। While you are in that journey, you don't know how that project would turn out. But वो if you have that passion for idea, if you have that passion to build something, वो चीज़ें होती चली जाती हैं। सो यू हैव टू स्टिक विद इट। अगर आपके दिमाग में एक आइडिया है, नो मैटर हाउ दी सर्कमस्टांसेस आर, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट, यू हैव टू कीप ड्वेलिंग फॉर इट, एंड चीज़ें वुड ऑब्वियसली देन इफ यू हैव वर्क राइटली, चीज़ें वुड कम अक्रॉस। सो वी वर फंडेड I had managed a team of 7 members, and we secured a fund of 5.5 lakhs from the Ministry of Education, and it was an IIC competition only. The IIC is the innovation mission that organized this whole competition, and we won this 5.5 lakhs. Now one of my biggest achievement, I'll say that I through this innovation I got a chance to meet our president, our Prime Minister of India, Narendra Modi ji, at Pragati Maidan. So अब मैं वही बता रहा था कि while I was working on this filament extruder machine, I didn't knew कि आगे जाके ये कुछ इतना achieve करेगी, but वही होता है when you have that passion for the idea, when you are motivated to work on it, आगे जाके चीज़ें आती हैं, वो अपने आप आती चली जाती हैं। It's a by product of it. Initially you have to be hardworking, you have to put in those extra hours on it, and फिर उसका by product की सारी achievements हैं।
So ये मतलब I'll say so far this is one of the most biggest achievement. So I got a call from the BIRAC that my project is selected and it has to be showcased on like on 9 to 10 June in प्रगति मैदान. अब इसकी भी I'll just share some story. तो इसका ऐसा था कि अर्जुन was there in New Delhi and I was there and मेरे को एक कॉल आई कि we'll be you have been selected and you will be showcasing your product to PM on this day. Obviously for me who is just a college graduate, एक ऐसी opportunity आना is a big thing. So I obviously told Arjun and Arjun said that I also want to accompany. So Arjun was also there with me over there and इस दिन जब हमने ये जाना था तब in our UIT itself governor of UP was there to visit our college and the very next day we have to reach Pragati Maidan as well. But we said obviously both are the very big opportunities, we won't miss out on that as well. In the morning only we go to college and we were ready that we'll meet governor of UP as well. But somehow things didn't take in place and governor का हमारे से मिलना ही नहीं होता है. But तब भी we were that और हमें पता है हमें शाम को निकलना है, PM से मिलना है. But वही है कि एक opportunity आई है, हम फिर भी we tried, हम उनको reach out करने की कोशिश करी. Though we couldn't meet her, but अब बाद में जाके मैंने look at it, that day has obviously changed a lot within me. लाइक आप कॉन्स्टेंटली जब आप खुद पे काम करने की वो डालते हो, एक ऐसे कोई भी सर्कमस्टांसेस आएंगे, आप उनके लिए वेट कर रहे हो एंड वो नहीं आते हैं, ऑब्वियसली आपको एक हार्टफेल्ट फील होता है कि मैं इस दिन के लिए मैंने अपना दिन खराब करा, मैं पूरा आया काम करा लेकिन वो मेरे से मिलने नहीं आए. बट कोई बात नहीं, लाइफ में एक चीज़ नहीं हुई है, सेकेंड चीज़ तो होगी ना. तो वही है, आपको आगे चलते रहना है. तो वो ऐसे दिन हुआ. फिर अगले दिन वी वेंट टू प्रगति मैदान में हमने ये शोकेस करा एंड PM मोदी ऑल्सो लाइक आवर आइडिया. फिर वहाँ पे दिस वाज माय फर्स्ट एग्जीबिशन एंड माय फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट आई गॉट टू शोकेस अ प्रोडक्ट इन प्रगति मैदान. तो वहाँ से देयर वर मेनी की लर्निंग्स दैट हाउ यू प्रेजेंट योर आइडिया टू पीपल, हाउ यू प्रेजेंट योर आइडिया टू ऑब्वियसली फॉरेन डिग्नेटरीज एंड उनको कैसे यू प्रेजेंट इट. एंड ऑब्वियसली देन आई टेक दोज लर्निंग्स टू माई स्टार्टअप. एंड यही एक स्टार्टअप का बेस्ट पार्ट है दैट every day you are learning. Every day you are learning something new. While speaking here as well, obviously I am learning a lot as well. तो यही एक startup का fun part है that you learn a lot. You learn a lot from this journey. So this was the invite card that we got that we will be meeting Narendra Modi ji. Continuous improvement. You have to continuously work on yourself. Morning में जब उठते हो ना तो एक खुद के अंदर से ज़ील होनी चाहिए कि जो मैं कल था वो मेरे को आज नहीं होना है. तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इवॉल्व योर सेल्फ. मेरे को कल से कुछ बेहतर सीखना है, कुछ एक नई चीज़ पे काम करना है. तो इफ़ यू हैव दैट मोटिवेशन, रात को नींद भी पीसफुल आएगी एंड चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी. तो ये अचीवमेंट से सारा ये होती चली जाएंगी इफ़ यू आर डेली मोटिवेटेड. और मैं ऐसा कोई बोर नहीं कर रहा हूँ कि हाँ सिर्फ आपको यही वाले आइडियाज़ पे काम करना है या मैं ऐसा मोटिवेशन स्पीच दे रहा हूँ कि आपके आइडियाज़ सारे बेकार हैं, ये नहीं है. बट यू हैव टू बी लाइफ में कुछ ग्रो करने के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्टार्टअप से ही ग्रो करना है. इनफैक्ट इन योर जॉब एज वेल. मैं नहीं कहूँगा कि जॉब करना कोई बुरी बात है. इन योर जॉब एज वेल, अगर जॉब को भी सिक्योर करना है, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इनहांस योर सेल्फ. देयर आर सो मेनी पीपल. कितनी जनरेशन है यार, मतलब कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की. तो देयर आर मेनी पीपल जो तुमसे बेटर होंगे. तो वही है कि यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर स्किल्स कि मैं सामने वाले से बेहतर कैसे हूँ, हाउ डू आई प्रेजेंट माई सेल्फ. यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इवॉल्व इन दैट. एंड ये एवरी सेक्टर में, इन टीचिंग, इन जॉब, इन स्टार्टअप, इन एवरी सेक्टर यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इवॉल्व योर सेल्फ. एंड एक जगह बैठ के नहीं रहना है कि हाँ मैंने आज ये अचीव कर लिया, कल से अब तो हो गया मेरा. तो ऐसा नहीं है कि एक अचीवमेंट आ गई ठीक है और काम करते रहो और ऐसी अचीवमेंट्स आती रहेंगी. सो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व योरसेल्फ, कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन आइडियाज एंड फिर चीज़ें होंगी सही. नाउ वन मोर थिंग, सबने सुना होगा कि इंडिया का टाइम चेंज हो रहा है एंड एक्चुअली चेंज हो रहा है. वी बिलीव दैट 2047 तक जो हमारा 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस होंगे, इंडिया वुड बी अ डिफरेंट प्लेस. इतने स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इतना कुछ आ रहा है. सो वी आर एट द बेस्ट स्टेज राइट नाउ where we can work. ये टाइम किसी और को नहीं मिला है. We are at this stage, so we have to constantly work and we have to grab this opportunity. So what better place than here, what better time than now.
सो आई से यू गाइस की कॉन्स्टेंटली वर्क करो, ये अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मिली है. गवर्नमेंट इज डूइंग सो मच, दे आर ब्रिंगिंग सो मेनी फंड, सो मेनी स्कीम्स. तो पैसे की कोई कमी नहीं है, आइडियाज़ अच्छे होंगे, यू हैव वर्कड ऑन इट, गवर्नमेंट भी पैसा उसमें देगी. तो कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन इट, एंड ये बेटर टाइम किसी को नहीं मिलने वाला है. ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का टाइम है, आज से पहले 5 years बैक 6 years बैक कोई ऐसे सेशंस नहीं लगते थे. देयर वाज नो सेशंस, लाइक हम भी जब कॉलेज में थे देयर वाज नो सेशन बीइंग कंडक्टेड बाय स्टार्टअप के बारे में या कुछ के बारे में. सो ये 5-6 years में जो चेंज आया है, ये सिर्फ हमारे लिए आया है, एंड दिस इज आवर टाइम. अगर हम इसमें काम करते हैं, वी ग्रो इन इट, वी ऑब्वियसली वुड चेंज द वर्ल्ड. तो काम करो खुद पे, अभी टाइम है, 10-15 years हैं. लीडर्स आएंगे, हमारे बीच से लीडर्स आएंगे. सो कॉन्स्टेंटली लगे रहो, एंड देयर वोंट बी अ बेटर टाइम दैन दिस. तो थैंक यू ऑल. सो दिस इज माय टाइम.